Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Today I am back with a new topic, that is animal tissue. Earlier we have discussed about a cell and plant tissue. Let us go forward with the animal tissue. So before beginning with this important topic, let us have a look on what is the importance of a cell and tissue. See, in the chapter cell, we discussed that a cell is the basic unit of life. A group of similar cells performing similar function makes up what? Tissue. Tissue makes up what? Organ. Organ makes up what? Organ system. And organ systems form a complete organism. This girl is an organism in whose body there are several different systems working together in order to bring about a different function in her body, and those systems are run by such organs, and these organs are made up of tissues and tissues are made up of cells. So hence it is proved and justified that cells are the fundamental, or you can say the basic unit of life. Alright. So when we talk about animals are advanced animals. Their body have different systems at different positions and are made for performing different works specifically. So their system is highly advanced. So let's have a look on the tissues involved in the animals. So basically there are 4 types of animal tissue, that is epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue and nervous tissue. The 4 basic types of tissue found in animals are epithelial, connective, muscle, or you can say muscular and nervous tissue. So let's have a look one by one. First of all, epithelial tissue. See, the characteristic feature of epithelial tissue is epithelial tissue performs the work of protection. They are specified for the work of protection because their cells are closely packed. Their cells are closely packed means if I say this is the cell, this is a single cell, so in this fashion the epithelial tissues, these are the cells, how they are arranged, and they are closely packed, leaving no intercellular space. You will not be able to see the space between these 2 cells. So this is called closely packed together. Okay, so such structure which is closely packed together, leaving no intercellular space, they perform the work of protection better, does not allowing the outer thing or bacteria to enter inside. Okay, they are also, the epithelial cells are flat, are closely packed. Okay, and then there can be different shape of the cells. Alright. Now, when we talk about epithelial tissue has a further different types like squamous epithelial tissue, columnar epithelial tissue, ciliated columnar epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue and glandular epithelial tissue. So these are 5 different types of epithelial tissue. Let's see them one by one. Squamous epithelial tissue. See, the squamous epithelial tissue, their cells are flat, एकदम चपटे हैं, hexagonal in structure, irregular in shape, as you all can see in the image. Okay. Cells line the inner walls. Where are they found? They are found in the inner walls of the blood vessels, lungs, heart, esophagus, etc. Okay. एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, जो स्किन है, स्किन का जो स्किन है वो स्किन खुद क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, लेकिन वो बहुत सारे लेयर्स अरेंज्ड है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के। तो जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है उनकी खासियत ही यही है कि व्हाट डू दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जर्म्स। ऑलराइट,
They are also referred to as a pavement tissue. Why are they referred to as a pavement tissue? Because the word pavement means a particular road which is meant for pedestrians. जो पैदल चलने वालों के लिए रोड बना होता है उसमें आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे ही ब्लॉक्स क्या होते हैं, अरेंज्ड रहते हैं चलने के लिए। ठीक है, तो वैसे जो सेल्स हैं वो भी ऐसे अरेंज्ड है, एकदम कट टू कट एंड एज टू एज अरेंज है। इनके बीच में आपस में क्या नहीं है, स्पेस, खाली स्पेस नहीं छोड़ा हुआ है, जिसके वजह से वो बहुत ही फिट साबित होते हैं कवरिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। कॉलमनार टिश्यू, नाम से समझ में आ रहा है कि जो सेल्स है देखो कैसे हैं, वो कॉलम जैसे सिलेंड्रिकल है और कॉलम जैसे है, जिसकी वजह से इनका जो एंड है ये ब्लंट होने की वजह से ये खुद से खड़े नहीं हो सकते। इसके लिए उनके पास क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। जैसे कि आपने देखा होगा जो टेस्ट ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब, उसको खड़ा करने के लिए हमें टेस्ट ट्यूब स्टैंड की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि उसका जो एंड है वो कैसा होता है, ब्लंट होता है और वो खड़ा नहीं हो पाता। सो दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्ट्स एज द होल्डिंग मेम्ब्रेन फॉर दिस columnar cells. Okay, also you all can see these are the nucleus which are usually seen at the base of the cell and not at the apex of the cell. Okay, so where are they found? See, as they are columnar, so they have a huge capacity to store. So they are usually found in those organs where the storage function is done. So hence they are found in the lining of the stomach, intestine, pharynx. Okay. Also, the important thing about columnar cell is here there are there are microvilli. What are microvilli? Microvilli are finger-like projection. Microvilli are finger-like projection which increases the surface area of absorption. मतलब कि ये जो है माइक्रोविलाइज जहाँ पर भी होते हैं ये कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, है ना। तो स्टमक में भी एब्जॉर्ब करना है, इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब करने का काम है। इसके लिए कॉलमनार टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है? ऐसे ऑर्गेन्स में जहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम ज़्यादा है। ऑलराइट, Then we have ciliated columnar tissue. These ciliated columnar tissue ये columnar tissue का ही modified form है, जिनके अपेक्स पे आपको ये सीलियाज देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसमें अलग क्या है, यहाँ पर भी सेल कॉलमनार है, न्यूक्लियस बेस पे है और यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन इसके टॉप पोजीशन पे सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया क्या होते हैं? सीलियाज आर हेयर लाइक फाइन स्ट्रक्चर। जो आपके नोज में है वो हेयर नहीं है, वो सीलिया है। ठीक है, जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, विंड पाइप में है, वो क्या है? वो भी सीलिया है। Then what do they do? They prevent entry of dust. What do they do? They prevent entry of dust. हमारे नोज में जो सीलिया है उनका सिग्निफिकेंस क्या है? उनका सिग्निफिकेंस यही तो है कि जब हम इनहेल करते हैं तो वो क्या करें, जो भी डस्ट वगैरह है उनको वो एंटैंगल कर ले, ट्रैप कर ले, ताकि हम एक फिल्टर्ड एयर अंदर ले पाए। बराबर। तो ये कहाँ पर पाए जाएंगे? ऐसे ऑर्गेन्स में जहाँ पर ट्रैपिंग का काम है, डस्ट की एंट्री को प्रिवेंट करने का काम है। सो हेंस दे आर फाउंड इन द नोज, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वहाँ पर ये डस्ट ट्रैप नहीं करते, बल्कि ओवरी से एग को ओविडक्ट में जाने में मदद करते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ये मूवमेंट कर सकते हैं, प्रोपेलिंग मूवमेंट जिसको बोलते हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल नाम से समझ में आ रहा है, देखो कैसे क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। अगर साइड से देखो तो स्क्वायर दिखता है, लेकिन अगर ऊपर से देखो तो ये आपको क्यूब दिखेगा। इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? वो एकदम सेंटर में है, अनलाइक
कॉलमनार का, जो कहाँ पर था, एकदम बेस पे था, है ना। तो ये जो क्यूबॉइडल एरिया है, इस क्यूब का सरफेस एरिया और सरफेस ऑफ वॉल्यूम दोनों भी ज्यादा होता है। इसके लिए ये भी जहाँ पर ज्यादा एब्जॉर्प्शन का काम है, सिक्रीशन का काम है, वहां पर पाया जाता है, ताकि इसका एरिया ज्यादा है तो ये एब्जॉर्ब करके रख सके और जब जरूरत पड़े तब सिक्रीट कर सके। इसके लिए ये थायराइड ग्लैंड और किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। ठीक है। देन ग्लैंडुलर, ये भी नाम से समझ में आ रहा है कहाँ पर पाया जाएगा, जो बॉडी में ग्लैंड्स है वहां पर। एक शॉर्ट नोट में बता दूं कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स आर नथिंग बट द बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या करते हैं, समय समय पे हॉर्मोन्स या एंजाइम्स, प्रोटीन्स, जूसेस क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, है ना। तो ये जो ग्लैंड्स है क्या होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो अपने अंदर से केमिकल्स सिक्रेट करते हैं, जिसे हम हार्मोन्स बोलते हैं, जो हमारे बॉडी में क्या लाते हैं, चेंजेस लाते हैं। जैसे कि हमारा छोटे से बड़ा होना, तो हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, जो बॉडी को क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। इसके अलावा भी हमारे लाइफ में एज के हिसाब से जो भी बॉडी में चेंजेस आते हैं वो किसके वजह से होते हैं, हॉर्मोन्स के वजह से होते हैं। और वो हॉर्मोन्स कौन प्रोड्यूस करते हैं, ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। और जो ऐसे टिश्यूज जो ये ग्लैंड बनाते हैं उनको हम ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं। ओके, सो दीज आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम। सेल्स क्या है, सेल्स मॉडिफाइड है, क्या करने के लिए, सिक्रेशन करने के लिए। कहाँ पर पाए जाते हैं, सारे ग्लैंड्स में। इसके साथ साथ जो हमारा स्टमक है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। इंटेस्टाइन भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है, वहां पर क्या होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट इज मस्क्यूलर टिश्यू। सी, मस्क्यूलर टिश्यू नाम से समझ में आ रहा है कहाँ पर पाए जाएंगे, मसल्स में पाए जाएंगे। मस्क्यूलर टिश्यू हमारे पास 3 टाइप के हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। देखो बहुत ही सिंपल है ये, व्हाट इज दिस स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। स्टार्ट करते हैं कार्डियक मसल से। हमारे बॉडी में जो हमारा हार्ट है ये एक स्पेशल ऑर्गन है जो थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूसली क्या करता है, पंप करता है। ये रुका, हमारी टिकट कटी, बराबर। तो जो हार्ट है ये एक स्पेशल ऑर्गन है जो ना थकता है ना रुकता है, लाइफ टाइम क्या करता है, पंप करता है, बीट करता है। तो इस स्पेशल ऑर्गन के स्पेशल काम के लिए इसको चाहिए स्पेशल मसल। तो वो स्पेशल मसल है कार्डियक मसल, जिसकी पंप करने की कैपेसिटी, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, बहुत ही दमदार है। ठीक है। और कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं और पूरे बॉडी में कहीं नहीं पाए जाते। देन द सेकेंड इज स्केलेटल मसल। देखते हैं जो स्केलेटल मसल है, नाम से समझो जो भी हमारे स्केलेटन पे चिपका हुआ है। हमारे बॉडी में पहले स्केलेटन है और स्केलेटन के ऊपर क्या है, जो मसल्स आप टच कर पा रहे हो, आपके थाई मसल्स, आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सारे के सारे क्या है, स्केलेटन पे चिपके हुए हैं, ये स्केलेटल मसल है। इनके जो सेल्स है वो कैसे है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है। ये एक सेल है और एक सेल पे देखो कितने सारे न्यूक्लियस है, इसलिए हम इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड या पॉलीन्यूक्लिएटेड भी कहते हैं। एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। प्लस जो आपको इस पे से लाइंस दिख रही हैं, इन लाइंस को ही कहते हैं स्ट्राइशंस। इसके लिए इनको स्ट्राइटेड मसल्स भी कहा जाता है। मतलब ऐसे मसल्स जिनके सेल पे क्या देखे जाते हैं, लाइंस देखे जाते हैं, स्ट्राइशंस देखे जाते हैं। तो इसके लिए हम इनको स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं। ठीक है। पूरे बॉडी के ऊपर जो भी आप मसल टच कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, वो स्केलेटल मसल है। जो भी स्केलेटन के ऊपर चिपका हुआ है वो इसी मसल से, इसी टिश्यू से बना हुआ है। अब ये जो टिश्यू है ये हमारे कंट्रोल में है। मतलब आपको दौड़ना है, आपको ताली बजाना है, आपको लिखना है, नहीं लिखना है, ये सब आपके कंट्रोल में है। आप चाह कर इसको स्लो, फास्ट, बंद, चालू कर सकते हैं।
अगर आपको नहीं दौड़ना है, रुकना है, तो आप रुक सकते हैं। मतलब ये टिश्यू पूरा पूरा आपके कंट्रोल में है, तो इसे हम कहेंगे वॉलेंटरी मूवमेंट या वॉलेंटरी एक्शन। ओके, एंड दिस टिश्यू वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर विल, आवर कंट्रोल, which is not the case with this both muscles, smooth muscle and cardiac muscle. कार्डियक आपको समझ में आ गया है, स्केलेटल समझ में आ गया है। स्मूथ क्या है? जो बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गेन्स है, जैसे कि स्टमक है, किडनी है, लीवर है, पैंक्रियाज है, वो भी तो मसल से बने हैं, जो आप छू के फील नहीं कर सकते, जो स्केलेटन के ऊपर नहीं है, जो स्केलेटन के अंदर है, जिनको प्रोटेक्ट करता है स्केलेटन, तो वो क्या है? स्मूथ मसल्स है। इनके जो ये एक सेल है, ये देखो, ये इसका एक सेल है जो कैसे है? स्पिंडल शेप्ड है, फिरकी के शेप का है, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। इसके एक सेल पे एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप चाह के भी आपके स्टमक की एक्टिविटी को बढ़ा घटा नहीं सकते, ब्लैडर मूवमेंट को, किडनी को आप क्या नहीं कर सकते हैं? कंट्रोल या रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। तो दीज बोथ आर इनवॉलेंटरी इन नेचर। इनवॉलेंटरी का मतलब होता है कि जो हमारे विल में, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम चाह के रेगुलेट नहीं कर सकते। समझ में आया? तो स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल में से स्मूथ और कार्डियक इनवॉलेंटरी है, व्हेरेज स्केलेटल क्या है? वॉलेंटरी है। ऑलराइट, और जो भी मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है, मसल सेल्स के अंदर के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और मसल सेल के सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेम्मा कहते हैं। ऑलराइट, वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी समझ में आ गया। वॉलेंटरी हमारे कंट्रोल में है, इनवॉलेंटरी हमारे कंट्रोल में नहीं है। देन द नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू। देखो, ह्यूमंस है, जो भी लिविंग बींग्स है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज उनको गिफ्टेड है लिविंग बींग्स को। उसमें से एक प्रॉपर्टी है रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई का मतलब है एनवायरमेंट से स्टिमुलस लेके हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठंडा है, गर्म है, कड़क है, सॉफ्ट है, हम क्या कर सकते हैं? उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टिमुलस लेकर रिस्पॉन्ड करने की क्षमता को कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, जो सिर्फ किसकी देन है? जो सिर्फ नर्वस टिश्यू की देन है, ठीक है। और नर्वस टिश्यू किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से बना हुआ है। ये एक कंप्लीट न्यूरॉन है, जिसमें ये उसका सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, और ये डेंड्रॉन है, और ये जो लंबी चोटी जैसा है ये एक्सॉन है। ये एक न्यूरॉन है, ये उसका हेड मान लो, ये उसका टेल मान लो। इसके टेल पे दूसरे न्यूरॉन का हेड अटैच होगा, दूसरे न्यूरॉन के टेल पे तीसरे न्यूरॉन का हेड अटैच होगा। तो ऐसे ही इसे कहते हैं दे आर अरेंज्ड इन हेड टू टेल मैनर, इन हेड टू टेल फैशन। तो जो भी हमको स्टिमुलस, जैसे कि अगर आपको कोई पिन चुभाए, है ना, आपको कोई चिमटी काटे, तो आप फील कर सकते हो। तो वो स्टिमुलस है जो ये डेंड्रॉन्स ने लेकर इसको न्यूरॉन को दिया, साइटॉन को दिया, और जिसने एक्सॉन के थ्रू पास करके दूसरे न्यूरॉन को दिया, उसने तीसरे न्यूरॉन को दिया। ऐसे करते करते ये पूरा जो स्टिमुलस है वो कहाँ तक जाएगा? हमारे ब्रेन तक जाएगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, और जहां से हमको क्या आएगा? ऑर्डर आएगा कि आप अपना हाथ पीछे खींच लीजिए, आप वहां से उठ के भागिए, आप उसको मारिए, है ना। तो ये जो भी हमें मैसेज आएगा वो कहाँ से आएगा? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से आएगा। तो जो न्यूरॉन है, इन न्यूरॉन का काम क्या है? इनका काम है स्टिमुलस लेकर जाना ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, और वहां से रिस्पॉन्स लेकर आना, ठीक है। तो जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स ही क्या बनाते हैं? न्यूरॉन्स ही बहुत सारे न्यूरॉन्स जुड़ के नर्व्स बनाते हैं। ऑलराइट,
तो जो न्यूरॉन्स हैं उनको मैसेज कौन देता है? डेंड्रॉन साइटोन को मैसेज देता है, साइटोन से एक्सॉन पे जाता है और एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जाता है, और ऐसे ही करके एक दूसरे को पास करते करते लोग कहाँ तक पहुंचा देते हैं? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा देते हैं। देन वी हैव कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में थोड़े से ज्यादा टिश्यूज हैं, नाम से ही समझ जाओ कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन का काम करेगा, है ना, कहीं ना कहीं कनेक्शन का काम करेगा। तो कनेक्टिव टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल, फ्लूइड। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एरियोलार, डेंस रेगुलर, एडिपोज। एक एक करके देखते चलते हैं कि क्या है। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमारे स्किन के नीचे पाया जाता है, हमारे स्किन के नीचे पाया जाता है, अंडर द स्किन। जो क्या करते हैं? ऑर्गेन्स के बीच के गैप को फिलअप करते हैं, ऑर्गेन्स के बीच के गैप को फिलअप करके पैकिंग मटेरियल जैसा काम करते हैं। कौन? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। This is the most widely distributed connective tissue in the animal body. That's it. Dense regular में you have tendons and ligaments. Just imagine हमारा बोन इतना कड़क होने के बाद, हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटन होने के बाद भी हम लोग इतने फ्लेक्सिबल कैसे हैं? कैसे हमारा हाथ पैर जिसमें इतनी सारी हड्डियां हैं वो क्या हो पाते हैं? फ्लेक्सिबली मूव हो पाते हैं, है ना, बेंड हो पाते हैं। So this is because of the tendons, that is the tendons are muscles which connects bones to bones. जैसे कि आपके हाथ में जितने बोन्स हैं तो वो एक दूसरे से किससे कनेक्टेड है? टेंडन्स की वजह से बोन्स क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है और बोन्स मूवमेंट कर पाते हैं। इसका मतलब टेंडन क्या है? इलास्टिक है नेचर में, राइट। वेरेस जो लिगामेंट है, लिगामेंट कनेक्ट्स बोन्स टू मसल। अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे स्केलेटन के ऊपर मसल्स चिपके हुए हैं, तो कुछ तो चिपकाने के लिए मटेरियल चाहिए, ग्लू मटेरियल। तो वो ग्लू मटेरियल कौन है? लिगामेंट है, ठीक है। तो जो क्या करता है? बोन्स को मसल से कनेक्ट करता है। ऑलराइट, देन देयर इज एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू है ये भी कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गेन्स के आजू बाजू, इंटरनल ऑर्गेन्स के आजू में और बाजू में। इनका मेन काम क्या है कि ये जो हमारे स्किन के नीचे पाए जाते हैं तो ये क्या करते हैं? ये इंसुलेशन का काम करते हैं, एज अ इंसुलेटर काम करते हैं। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? आप ध्यान करो कि जब भी जो मोटे लोग होते हैं उनको गर्मी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पतले लोग, क्योंकि उनके बॉडी में जो स्किन के नीचे फैट का लेयर है वो ज़्यादा है, जो बॉडी के अंदर की हीट को बाहर निकलने नहीं देता और बॉडी के अंदर ही स्टोर करना चाहता है, जिसकी वजह से उनको इंटरनली बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है। तो ये जो एडिपोज टिश्यू है ये हमारे स्किन के नीचे है, जो क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर की हीट को बाहर जाने नहीं देता। ओके, आप अगर पोलार पांडा के बारे में पढ़ोगे, जो पोलार बेयर है उनके बॉडी पे बहुत ही मोटे मोटे फैट के लेयर है, जिसको हम ब्लबर फैट रेफर करते हैं, जो इंसुलेटर जैसा काम करते हैं, ताकि वो जो पोलार बेयर है वो जो भी खाए उससे बनने वाली हीट एनर्जी वो क्या ना हो पाए, इस ब्लबर फैट को पार करके एनवायरनमेंट में एस्केप न हो पाए और बॉडी के अंदर वो हीट बनी रहे, ताकि उसका टेम्परेचर बना रहे और उसके बॉडी में रिएक्शंस काम करते रहे, राइट। नेक्स्ट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज तो क्या है? आपका जो ईयर पिन्ना है ना, जो आप अगर कान छू के देख सकते हो, वो क्या है? वो बोन नहीं है, बल्कि इसको हम लोग नरम हड्डी बोलते हैं। वो क्या है? कार्टिलेज है। तो ये जो टिश्यू है कार्टिलेज टिश्यू, ये कैसा है? इलास्टिक भी है और थोड़ा सा कड़क भी है। तो मतलब ये लिमिटेड रिजिडिटी भी देता है
और ये लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, ठीक है। और बोन से तो कोई अनजान नहीं है, और बोन्स क्या है, सबसे कड़क मटेरियल है कनेक्टिव टिश्यू के, क्योंकि बाकी सारे जो टिश्यूज है वो नरम है और बोन्स कड़क है, क्योंकि बोन्स क्या कर सकते हैं, बोन्स के जो टिश्यू है ये मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना। तो ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके क्या हो गए हैं, हाईली कड़क हो गए हैं, हाईली रिजिड हो गए हैं, ओके। और जो बोन्स हैं वो क्या करते हैं, हमारा स्केलेटन फॉर्म करते हैं, हमको फ्रेमवर्क देते हैं, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स उनको प्रोटेक्शन देते हैं, और हमारे बॉडी का एक जो शेप है उसको मेंटेन करके रखते हैं, राइट। देन अगर हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो हमारे पास है ब्लड और लिम्फ। जी हाँ, हमारा ब्लड भी क्या है, एक टिश्यू है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके पास बहुत सारे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। ये ब्लड है, ब्लड में देखो रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स है, बहुत सारे सेल्स हैं और बहुत ही डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। तो जो ब्लड भी है ये हमारा क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या करता है, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करता है ना। पूरे बॉडी में ऑक्सीजन हो, हार्मोन हो, वेस्ट हो, न्यूट्रिएंट्स हो, है ना, ये सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है, ऑलराइट। इसके अलावा जो लिम्फ है वो भी क्या है, हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ को हम कैसे बोल सकते हैं, आप ऐसे मानो कि ब्लड माइनस आरबीसी क्या है, लिम्फ है। मतलब कि जब ब्लड वेसल्स में फ्लो होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसमें से जो WBC है वो क्या करते हैं, अपना ब्लड वेसल छोड़ के टिश्यूज में निकल आते हैं। They squeeze out of the blood vessels and get collected in the tissues. So lymph is a clear to white fluid made up of WBC, especially lymphocytes, which is a type of WBC. So these cells that attack bacteria in the blood, lymphocytes are the cells that attack bacteria in the blood and hence are responsible for our immunity system. जिसके WBC जितने एक्टिव, जिसका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग उतना ही कम बीमार पड़ेगा, और जिसका जितना वीक उतना ही ज्यादा बीमार पड़ेगा। समझ में आ गया लिम्फ क्या है, लिम्फ इज ब्लड माइनस आरबीसी, और जो क्या होते हैं, ब्लड वेसल में फ्लो करने के समय वो अपने ब्लड वेसल से स्क्वीज आउट होके आके टिश्यू में इकट्ठा हो जाते हैं, और उनके पास बहुत सारे WBC होते हैं जो हमें बीमारियों से, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, राइट। ये एक बार स्ट्रक्चर देख लो कनेक्टिव टिश्यू का। ये टेंडन्स है, कैसे इसने मसल्स और बोन को क्या क्या, देखो मसल्स और बोन को कनेक्ट किया हुआ है। ये लिगामेंट है जिसने बोन्स और बोन्स को कनेक्ट किया हुआ है, राइट। सो देखो ये ह्यूमन बॉडी है, इसमें आप लोकेट करो कैसे कैसे अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग ऑर्गेन्स में अलग अलग टिश्यू हैं जो अपने अपने समय से अपने अपना काम करते हैं और ह्यूमन बॉडी को कोऑर्डिनेशन में चलाते हैं और उसको हाईली एफिशिएंटली काम करवाते हैं। Alright, so this was all from my side on the animal tissue. If there is any difficulties, any doubts, kindly feel free to write it in the comment section. By the time, stay home, stay safe. God bless you all. Thank you.